पश्चिम बंगाल की घटना ने कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। हमारे साथ महामहिम पश्चिम बंगाल मौजूद हैं, जो खुद मौकाए वारदात पे जाके उन्होंने सब कुछ का जायज़ा लिया और जानने की कोशिश की कि आखिर क्यों, कहाँ और किस वक्त घटना हुई। अ, सर, सबसे पहले एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जो घटना हुई है, उस घटना को आप लोग किस तरीके से देखते हैं और जब आप वहाँ गए तो आपने क्या देखा? पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो दुर्घटना हुआ है बहुत दुख की बात है। गुड्डाओं का राज है वहाँ। बाहर से आने वाले बदमाश लोग ये छात्र छात्रियों से को धोखा देता। दे आर ऑल अफ्रेड, स्टूडेंट्स आर अफ्रेड, देयर इज नो सेंस ऑफ सिक्योरिटी देयर। इट्स अ काइंड ऑफ गुंडा राज which is happening there. That is the general feeling given to me by the medical students and the paramedicals. Situation is very bad, very disturbing. अब स्टूडेंट्स का कहना है कि सिक्योरिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब एक हफ्ते पहले एक लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके एक हफ्ते बाद फिर से लोग आते हैं और पूरे सब कुछ को तोड़ ताड़ के चले जाते हैं। सिक्योरिटी ठीक नहीं। कोई हॉस्पिटल्स में कोई सिक्योरिटी नहीं। गुंडा लोग बाहर से आ सकता है। रात में हंड्रेड्स ऑफ गुंडास आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर आया, रानसा किया, लड़कियों को धोखा दिया। मेडिकल fraternity is scared. They came to me, especially the girls. They said, we would like to leave the profession. Our parents are asking us, leave it, give back the bond amount. Our life is more important than the degree. That is a situation which is prevailing in the hospitals in Bengal now. सर, अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो आपको लगता है कि जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, वो इस तरीके से नहीं है कि वो उन लोगों को सिक्योरिटी दे सके, या उनकी शह पे ये सब कुछ हो रहा है? लोगों को सिक्योरिटी देना गवर्नमेंट का कर्तव्य है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट इसमें फेल हुआ है, टोटल फेलियर। दे हैव टू ensure life is protected, property is protected. The right to life is a fundamental right. Even that is not guaranteed by the state government in the medical colleges, as is reflected in the gruesome incident that took place in RG Kar Medical College. दूसरी यूनिवर्सिटीज़ का भी वही हाल है। आसनसोल में यूनिवर्सिटी में ऐसा ही कुछ हो रहा है, अलग जगह पे ऐसा ही कुछ हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि वैंडलिज्म पॉलिटिक्स चल रहा है यहाँ पे। वैंडलिज्म एक रेगुलर फीचर हुआ है बंगाल में। हम कहते हैं बंगाल कविगुरु रवींद्रनाथ ठाकुर বলেছিলেন, चित्त जद भय शून्य उच्च जद शिर, where the mind is without fear and the head is held high. Contemporary Bengal ऐसा नहीं है। In contemporary Bengal, fear psychosis is there. In the campuses, violence is there. Bengal is not what it should be. Bengal has become a den of atrocities, campus violence, politicization, and the police. Part of the police is politicized. Part of the police is criminalized. That is a situation which is alarming in Bengal today. सर, अगर ये स्थिति रहा तो फिर आने वाले दिनों में आम जनता कैसे रहेगी? यहाँ आम जनता की तो बात छोड़िए, राजभवन तक को पुलिस ने नहीं बख्शा। We are taking all steps to assuage the feelings of the people. Rajbhavan has started an Abhaya home where any medical student or a paramedical who feels threatened can come and stay as our honored guest. We have also started the Abhaya portal where anybody can send any complaint 24/7. We will be there
to assist them. I have written to the Chief Minister 20 steps that are to be immediately taken to protect the lives of the students and the medicos, paramedicos. Today, I had a discussion with the heads of the central government medical institutions here. There is adequate security arrangements there, but more vigil will be there. Situation in the medical colleges and hospitals here in Bengal is very bad. Government has rise to the occasion. I have given instructions to the Chief Minister under Article 167 of the Constitution of India. I am waiting for action. आपको लगता है चीफ मिनिस्टर को मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए? हालांकि वो जनता के बीच जा रही है, वो खुद भी प्रोटेस्ट कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो खुद हैंडीकैप्ड हो गई हैं, जबकि उनकी खुद की सरकार है. Government has to act. The Chief Minister is a health minister. Chief Minister is a home minister, all rolled in one. The Chief Minister has a primary responsibility to ensure that there is security in the campuses. There is security in the state. The Chief Minister has a responsibility to see that violence is prevented. The Chief Minister has a responsibility to control her police. The Chief Minister should do her duty. That is what Bengal expects of her. That is what India expects of her. Do her duty. That should be there. There should proof of the pudding is in the eating. People should feel there is a sense of security here. Now, in many places, it is near anarchy that is prevailing. आंदोलन करना, आंदोलन का हिस्सा होना और आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित करना, ये तो एक तरीके से आम लोगों का काम है. अगर सरकार खुद ही आंदोलन करने के लिए बैठ जाएगी तो फिर जनता किसके पास जाएगी? That is a paradox here. You know, when somebody is mad, you can put her in chain. But if the chain itself becomes mad, what will you do? That is what is happening here. To protect the crops, you put up a fence. Suppose the fence start eating the crops. That is a bizarre situation which we are seeing in Bengal. Everything ulta pulta. Ulta pulta Raj. That does not bring credit to anybody down the line. हाल के दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई हैं, चाहे वर्धमान में हो, आसनसोल में हो या आरजेकर में हो, आपको लगता है ये सारी चीजें कहीं ना कहीं एक ऐसी रिपोर्ट बन के प्रेसिडेंट रूल की तरफ जा रही हैं? ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, उसके बारे में मैं कोई ओपन स्टेटमेंट नहीं दूंगा. कॉन्स्टिट्यूशन में वेरियस ऑप्शंस हैं, वे सारे ऑप्शंस हम पढ़ते हैं. जो डिसीजन लेता है उस टाइम में पब्लिक में बताएगा. अब तो उसके बारे में कोई कमेंट नहीं दूंगा. एक आखिरी सवाल, सीबीआई के आने से आपको लगता है कि जो दूध का दूध पानी का पानी है वो हो पाएगा और लोगों को वो जस्टिस मिल पाएगा जिस जस्टिस की वो डिमांड कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस से तो सब लोगों का विश्वास उठ गया है. मुझे सीबीआई में विश्वास है, जनता को सीबीआई में विश्वास है. लेट अस वेट. सीबीआई सच को साबित करेगा, जरूर करेगा. हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का वो जस्टिस देगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा. धीरे धीरे रेमना, धीरे सब कुछ होए. माली सींजे सौकड़े, ऋतुआए फल होई. लेट्स वेट. जस्ट फल की बात कर रहे हैं, आप खुद भी सर आरजेकर अस्पताल में गए थे, आपने देखा होगा ग्राउंड फ्लोर पे इमरजेंसी है, वहाँ एक छोटा पुलिस कंट्रोल रूम भी है और उसी इमरजेंसी के 4th फ्लोर पे इस तरह की घटना हो जाती है और सुबह 10 बजे तक पुलिस को पता नहीं होता है. तो क्या ये सब वजह हैं जिसकी वजह से लोगों का विश्वास पुलिस के ऊपर से उठ रहा है? पुलिस कंट्रोल रूम है, पर पुलिस को कोई कंट्रोल नहीं था. यही बात है. हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये थे महामहिम राज्यपाल जिनका कहना था कि सब कुछ सामने आएगा, सीबीआई पे यकीन रखना पड़ेगा, थोड़ा वक्त लगेगा. कैमरामैन निरंजन के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, कोलकाता.